Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Radvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10. So students, we have started reading with our third chapter from the book First Flight. The name of the chapter is Two Stories About Flying. Okay, so in the previous video we have completed reading with our first story, and in this video we will start with our second story. Okay, so in this chapter there are two different stories that are related to flying. Okay, so we have completed the first one, that was about the seagull. A young seagull was there and the title of the story was his first flight. Okay, and in this video we will start with our second story, and this story is written by Mr. Frederick Forsyth. So he is the writer of our second story. Okay, so let's begin reading with the second story from this chapter. The Black Aeroplane. So the title of our second story is The Black Aeroplane. So this story is about an aeroplane that is of black color. Okay, so it's looking it seems to be very interesting story. So let's begin. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. So in the story we can see there is a pilot who is flying an aeroplane, and he is saying that night when he was flying the aeroplane, there was the moon in the sky that was coming up in the east and behind him. Okay, so his aeroplane was there, and behind the aeroplane there was moon, and in which direction? In the east side. Okay, the stars were shining in the clear sky above me, and that night the sky was clear, there were no clouds, so he was able to see the stars there. Okay, the stars that were shining in the sky above him. There wasn't a cloud in the sky, so it was a clear sky, so there wasn't any cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside, and that pilot is saying that he was very happy that night that he was all alone in the sky. So there was no other aeroplane around him, he was alone flying in that time, and he was above the sleeping countryside. So ये रात का टाइम था, तो उसको पता था कि सब सो रहे हैं, जो नीचे जो पूरा एरिया, जो पूरा कंट्री साइड है, सारी सिटीज़ हैं, सारे टाउन्स हैं, वहाँ पे सब सो रहे हैं क्योंकि बिल्कुल रात का टाइम था. एंड ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज अलोन देयर हाई अप इन द स्काई. ओके, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकेटो एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. और जिस पायलट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये पायलट, दिस पायलट वॉज फ्लाइंग ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन. सो डेकोटा इज अ काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट. इन द पिक्चर यू ऑल कैन सी दिस इज डेकोटा एयरप्लेन. ओके, सो ही वॉज flying this aircraft over France back to England, and he was going to England and he was flying over France. Okay, so वो जो पायलट था वो डेकोटा एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था और उसकी डेस्टिनेशन क्या थी? He was going to England, and at that time he was flying over France. Okay, and he was all alone in that. At that time there was no other aircraft near him, and he was very happy. The weather was very pleasant, no clouds were there, it was very clear night, it was very clear sky at that time, and he was able to see the moon, he was able to see the shining stars. Okay, I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. Now this pilot is very happy, and now he was thinking. Dreaming means thinking. He was thinking about his holiday. तो ये जो थी उसकी जो फ्लाइट थी, उसको जो इंग्लैंड तक जाना था, इसके बाद he was planning for some holidays. So वो अपने हॉलीडेज के बारे में he is thinking and looking forward to being with my family, and he was missing his family. और उसको वेट हो रहा था, he was very eager कि कब वो इंग्लैंड पहुंचेगा. His family was there in England, so he was very eagerly waiting to reach England and to be with his family one more time. I looked at my watch 1:30 in the morning. और उस समय क्या टाइम हो रहा था? इसने अपनी वॉच की तरफ देखा और वॉच में क्या टाइम हो रहा था? 1:30 in the morning. So 1:30 in the morning means 1:30 a.m. Okay, so the time was 1:30 a.m. I should call Paris control soon, I thought. And when the pilot saw the time and he realized that it's 1:30 a.m. तो उसको क्या रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब पेरिस कंट्रोल पे जल्दी ही कॉल कर लेना चाहिए. सो आपने ये सब देखा होगा, जब भी आप किसी मूवीज़ में देखते हैं या किसी टीवी में आपने कहीं देखा होगा, जो पायलट्स होते हैं जब वो एरोप्लेन फ्लाई करते हैं तो उन्हें टाइम टू टाइम इस तरह से जो कंट्रोल बने हुए होते हैं जहाँ पे वहाँ वही कॉल करते हैं, अपनी लोकेशन के बारे
में बताते हैं और उनसे कुछ गाइडेंस वो लेते हैं. सो द सेम रूटीन, ये जो पायलट था ही वॉज फॉलोइंग द सेम रूटीन. सो ही रियलाइज दैट ही शुड कॉल द पेरिस कंट्रोल सून. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. अब जब पायलट बैठा हुआ है, फ्लाई कर रहा है, अब उसने एरोप्लेन की नोज़, मतलब एरोप्लेन का जो ये आगे वाला पार्ट होता है ना, उसने एरोप्लेन के इस पार्ट से साइड में होके देखा. सो ही वॉज एबल टू सी द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो उसे रियलाइज़ हो गया था कि अब जल्दी ही सामने या आगे हम कह सकते हैं एक बड़ा सिटी आने वाला था. देयर वॉज अ बिग सिटी बिकॉज देयर वर many lights and he was able to see the multiple lights there. So he realized that there is a big city to come. तो उसको लगा कि अब मुझे फ़ोन कर लेना चाहिए, मुझे कॉल कर लेना चाहिए पेरिस कंट्रोल, अपनी लोकेशन बता देनी चाहिए और उनसे कुछ गाइडेंस जो मुझे लेनी है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि अब जल्दी ही एक बड़ी सिटी आने वाली है. ओके. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. So आपने इस तरह का कन्वर्सेशन सुना होगा कई बार टीवी में, मूवीज़ में. तो इसी तरह से पायलट जो होते हैं वो रेडियो पे कॉल करते हैं. ओके. सो जो कांटेक्ट करते हैं वो कंट्रोल टावर से, वो कैसे करते हैं? थ्रू रेडियो. सो इस पायलट ने भी अपना रेडियो स्विच ऑन किया और अपने रेडियो से एक कनेक्शन डेवलप किया पेरिस कंट्रोल पे. और उसने क्या कहा? He said Paris Control, Dakota DS088. तो वो जो Dakota एयरक्राफ्ट था उसका पूरा जो मॉडल नंबर था वो क्या था? That was Dakota DS088. और उसने आगे कहा Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो उसने अपनी लोकेशन बताते हुए, अपने एयरक्राफ्ट के बारे में बताते हुए, अपना डेस्टिनेशन बताते हुए कहा कि मैं ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा हूँ एंड माई डेस्टिनेशन इज़ इंग्लैंड. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. ओके. और इस तरह से जब हम कोई कन्वर्सेशन करते हैं तो हम जब अपनी बात पूरी बोल लेते हैं तो उसके बाद में हम क्या बोलते हैं? ओवर. ओके. तो इस तरह से उसने रेडियो के थ्रू कन्वर्सेशन किया, पेरिस कंट्रोल के साथ उसने एक कनेक्शन डेवलप किया. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. अब जब इसने रेडियो का यूज़ करके पेरिस कंट्रोल का जो कंट्रोल टावर बना हुआ था वहाँ से कनेक्शन करके इसने अपनी जब बात कही तो इमीडिएटली मीन्स एट वंस. तो तुरंत ही क्या होता है? वहाँ से जो पेरिस कंट्रोल टावर था वहाँ से इसकी बात का आंसर आता है. ओके. सो वो आंसर भी इसको कैसे सुनाई देता है? रेडियो पे सुनाई देता है. सो रेडियो पे एक वॉइस आती है उस वॉइस में इसको आंसर मिलता है इमीडिएटली. और आंसर में क्या कहा गया था? DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088 over. सो जब इसने अपनी लोकेशन बताई और कहा कि आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. सो जो कंट्रोल टावर बना हुआ था पेरिस में वहाँ से क्या मैसेज आया? इसके लिए DS088 I can hear you. जो सबसे पहले इसने क्या पूछा था? Can you hear me? तो उन्होंने आंसर देते हुए कहा yes I can hear you. और फिर उन्होंने आगे की डायरेक्शन बताते हुए क्या कहा? You ought to turn 12 degrees west now. उन्होंने कहा कि अब तुम्हें यहाँ से टर्न लेना है वेस्ट डायरेक्शन में. और कितना? 12 डिग्रीज का टर्न लेना है. और ये कह के उन्होंने अपनी बात एंड करते हुए वापस उन्होंने कहा ओवर. ओके. तो इस तरह से जो पायलट है उसने रेडियो के द्वारा जो पेरिस कंट्रोल टावर था वहाँ से कनेक्शन एक डेवलप किया, अपना डेस्टिनेशन बताया दैट ही इज़ गोइंग टू इंग्लैंड. और उसको पेरिस कंट्रोल टावर से कुछ डायरेक्शन मिली अकॉर्डिंग टू कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आगे कहाँ से टर्न लेना है, कहाँ पे मूव करना है, वो सारी गाइडेंस, वो डायरेक्शन उसको मिली वहाँ से. ओके. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. अब now according to the direction that he received from the Paris control tower, he acted accordingly. तो उसको क्या डायरेक्शन मिला था कि 12 डिग्री वेस्ट में टर्न लेना है. सो अकॉर्डिंगली इसने क्या किया, इसने सबसे पहले अपना मैप चेक किया. अब स्टूडेंट्स, द पायलट इज हाई इन द एयर, ओके, हाई इन द स्काई. सो हाउ विल ही रिकॉग्नाइज अबाउट द डायरेक्शन कि वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है, 12 डिग्रीज टर्न लेना है. सो ये सब चीज़ें वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर दिस दे यूज द मैप एंड द कंपास. ओके, सो मैप यू ऑल नो व्हाट इज मैप, और कंपास क्या होता है. हियर इन द पिक्चर यू कैन से दिस इज नोन एज कंपास. दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, ओके, दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस. ओके, तो इसके द्वारा हम कोई सी भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं. एन इज फॉर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, तो इसके द्वारा हम
हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि वेस्ट किस तरफ है। तो उसको क्या इंस्ट्रक्शन मिला था कि 12 डिग्रीज वेस्ट में टर्न लेना है। तो उसने सबसे पहले अपना मैप चेक किया, अपना कंपास चेक किया ये देखने के लिए कि जो वेस्ट डायरेक्शन है वो किस साइड में है। और फिर इसने क्या किया, जब इसने हमें डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ली दैट आई हैव टू टर्न दिस साइड, ओके, देन व्हाट डिड ही डू, ही स्विच्ड ओवर टू सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। ओके, तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें सिर्फ एक ही फ्यूल टैंक नहीं होता, एक से ज़्यादा फ्यूल टैंक होते हैं। तो उसने क्या किया, जो उसका सेकंड फ्यूल टैंक था और ये उसका लास्ट फ्यूल टैंक भी था, वो उसने स्विच कर लिया। यानी कि अब जिसने अपना सेकंड फ्यूल टैंक यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जो फर्स्ट फ्यूल टैंक था उसमें फ्यूल ख़त्म हो रहा होगा, तो उसने अपना सेकंड फ्यूल टैंक और ये जो इसका लास्ट फ्यूल टैंक है, तो उसके पास अब इतना ही फ्यूल है, सिर्फ एक टैंक ही फ्यूल है, वो यूज़ करना ही स्टार्टेड। ओके, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. And after identifying the direction and the 12 degrees, when he was sure of checking with the map, checking with the compass, finally he turned the Dakota aircraft 12 degrees west towards England. Okay, I will be in time for breakfast, I thought. और जब इसने ये काम भी कर लिया, अब वो बिल्कुल इंग्लैंड पहुंचने ही वाला था, क्योंकि इंग्लैंड की डायरेक्शन में उसने अपने एयरक्राफ्ट को टर्न भी कर लिया था। सो अभी क्या सोच रहा है, इसने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच ही जाऊंगा। ओके, सो वो बहुत ईगरली वेट कर रहा है अपनी फैमिली के पास जाने के लिए। ही इज़ वेटिंग फॉर हिज हॉलीडेज़। ओके, सो अब उसको जल्दी से वेट हो रहा है कि मैं जल्दी से घर पहुँची हूँ, और उसको लग रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक घर पहुँच ही जाऊँगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, सो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, इसको सोच के बहुत टेम्पटिंग लग रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट करने पहुंच जाऊंगा। और जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है दैट इज़ वेरी गुड, वेरी बिग, वेरी लैविश, दैट इज़ इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ओके, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। तो उसको लगा कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया है, डेस्टिनेशन आने ही वाली है। ही वॉज अबाउट टू रीच हिज डेस्टिनेशन, ही वॉज अबाउट टू रीच टू इंग्लैंड। तो उसे लग रहा था सब कुछ अच्छे से हो गया, और ये बहुत ईजी फ्लाइट थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी टेक्निकल एरर नहीं आया, वेदर भी अच्छा था, क्लाउड्स नहीं थे, और टेक्निकली भी सब कुछ ठीक रहा, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत ईजीली, बहुत स्मूथली ये फ्लाइट हो गई, ऐसा उसे लग रहा था। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. So the pilot is very happy. He is realizing that okay, now everything is perfectly fine and I am about to reach to my destination. And the flight was very easy, very smoothly happened everything. लेकिन अभी भी now there was one twist. अभी भी चीज़ें जो थी उसके जैसा वो सोच रहा था उतनी स्मूथली नहीं होने वाली थी। Suddenly there was a twist. And what was the twist? When Paris was about 150 किलोमीटर्स बिहाइंड में, यानी कि जब ये पेरिस पहुंचा था तब इसने क्या किया था, इसने पेरिस कंट्रोल टावर से कनेक्शन रेडियो के थ्रू बनाया था और बात की थी। ओके, उसके बाद इसने क्या किया था, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न ले लिया था। अब टर्न लेने के बाद ये 150 किलोमीटर्स आगे आ चुका है। ओके, तो जो पेरिस है वो 150 किलोमीटर्स अब पीछे रह चुका है, और ये 150 किलोमीटर्स पेरिस से आगे आ गया था। तब सडनली क्या हुआ, ही सॉ द क्लाउड्स। Now suddenly weather changed. Now suddenly there were clouds in the sky. Storm clouds, और वो भी normal clouds नहीं थे, those were storm clouds. Okay, they were huge, और storm clouds भी कैसे, they were very huge in size. So suddenly अब जब वो पेरिस से काफ़ी आगे आ गया था, अचानक से weather change हो जाता है, और suddenly he was in between the black clouds, or we can say the stormy clouds, the clouds that were very huge. Okay, they looked like black mountains standing in front of me across the sky. और वो जो black clouds थे, जो stormy clouds थे, वो उसको कैसे लग रहे थे, they were looking like black mountains standing in front of me across the sky. तो उसको लग रहा था कि ये black clouds नहीं, जैसे कोई black mountains, वो इतने huge थे। ओके, I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, what options he is having now? Okay, so he is in the sky, high in the sky, and there were big clouds, stormy clouds in front of him. तो इसके पास अब क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो एक ऑप्शन तो क्या है कि ये बिल्कुल क्लाउड्स के ऊपर तक उड़ के जाए। ओके, सपोज ये इसका एयरक्राफ्ट है, और यहाँ पे ये क्लाउड्स हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉमी क्लाउड है।
सो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है कि अपना एरोप्लेन ऊपर ले ले और इनको ऊपर से क्रॉस करे, ओके, लेकिन ही न्यू दैट ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, इसको पता था ये अपने एयरक्राफ्ट को इतनी ज़्यादा हाइट पे नहीं लेके जा सकता, ओके। तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी भी एक मेज़र होता है कि वो इस हाइट पे ही फ्लाई करेंगे। तो उसको पता था कि उसका जो एयरक्राफ्ट है वो इतनी हाइट पे नहीं जा पाएगा कि वो इन क्लाउड्स के ऊपर जाके इन क्लाउड्स को पार कर ले। सो ये ऑप्शन नहीं था उसके पास कि वो अपने एयरक्राफ्ट को ऊपर ले जाए और ऊपर से उसे क्रॉस कर ले। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और सेकेंड ऑप्शन क्या है कि अगर वो ऊपर से नहीं जा रहा तो वो साइड से, यानी कि या तो इस साइड से नॉर्थ से या फिर साउथ से, यानी कि बीच में क्लाउड है, या तो वो उसको मतलब सर्कुलर शेप में नॉर्थ साइड से या फिर साउथ साइड से उसको क्रॉस कर ले। लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए था, उसको काफ़ी फ्यूल चाहिए था। और वी हैव रेड अर्लियर दैट ही स्विच्ड टू हिज सेकंड फ्यूल टैंक, दैट वाज द लास्ट फ्यूल टैंक इन दैट एयरक्राफ्ट। तो उस एयरक्राफ्ट में इतना फ्यूल नहीं था कि वो इतना लंबा सर्कल लगाए, पूरा उसको सर्कुलर शेप में उसको राउंड करके क्रॉस करे, इतना फ्यूल भी उसके पास नहीं था। तो ये दोनों ही ऑप्शन ही वॉज नॉट हैविंग नाउ, ये दोनों ही ऑप्शन वो वर्कआउट नहीं कर सकता था। ना वो अपने एयरक्राफ्ट को इतना ऊपर लेके जा सकता था और ना ही उसके पास इतना फ्यूल था कि वो पूरा ही सर्कुलर शेप लगा के उस क्लाउड को पूरा सर्कुलर शेप में उसको कवर करके फिर उसको क्रॉस करे, इतना फ्यूल भी उसके पास नहीं था। सो अब उसके पास क्या प्लान है, अब वो क्या करेगा, लेट्स सी। I ought to go back to Paris, I thought। सो अब इसके पास क्या ऑप्शन था, उसको लगा कि मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है, ना मैं इतनी हाइट पे जा सकता, तो मैं क्या करूँ। तो उसको लग रहा था कि अब मुझे यही करना पड़ेगा कि मैं फिर से पेरिस लौट जाऊँ, पेरिस जो कि 150 किलोमीटर्स पीछे था। तो उसको लगा कि अब यही बेस्ट ऑप्शन है कि मैं यू टर्न ले लूँ, अपना एयरक्राफ्ट में टर्न कर लूँ, फिर से मैं पेरिस चला जाऊँ, पेरिस में अच्छे से लैंडिंग कर लूँ। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। सो ये ऑप्शन था इसके पास, दैट ऑप्शन ही वॉज हैविंग एट दैट टाइम, दैट वॉज वेरी सेफ ऑप्शन। बट उसके माइंड में एक और बात आती है, अगर वो पेरिस जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अपने घर जाने में लेट हो जाएगा। और ये जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहता था, क्यों, बिकॉज ये ब्रेकफास्ट के टाइम तक घर जाना चाहता था। सो वी हैव रेड अर्लियर दैट ही वॉज ईगरली वेटिंग टू बी विथ हिज फैमिली अगेन। तो उसके पास ये ऑप्शन तो था कि ये फिर से पेरिस लौट जाए, जो कि 150 किलोमीटर्स ही पीछे था, लेकिन वहाँ जाने का मतलब था ये अपने घर जाने में, इंग्लैंड जाने में लेट हो जाएगा। और ये बिल्कुल नहीं चाहता था, ये अपना उस मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ घर पे करना चाहता था। तो उसको लगा कि अगर मैं पेरिस जाऊँगा तो मैं घर जाने में लेट हो जाऊँगा और मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक घर नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं फिर से अपना ब्रेकफास्ट मिस कर दूँगा घर पे। I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. So finally, जब सारे options के बारे में इसने सोच लिया, सारी calculations कर ली, अच्छे से हर एक चीज़ analyze कर ली, finally what did he decide? He decided that he should take the risk. उसको लगा कि मुझे risk लेना ही पड़ेगा। And what was the risk? उसने decide किया कि वो अपने old Dakota जो उसका aircraft है, उसे सीधे storm में से लेकर ही क्रॉस करेगा। यानी कि ये जो इसके एयरक्राफ्ट के सामने इतना बड़ा क्लाउड आया था, उसको लगा मैं ऊपर नहीं जा सकता, साइड में नहीं जा सकता, और पीछे लौट के जाने का ऑप्शन था उसके पास, लेकिन वो ऑप्शन वो ऑप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे अपने घर जाने की जल्दी थी। तो फाइनली उसने क्या डिसाइड किया कि वो उस स्ट्रॉम के बीच में से ही इसे क्रॉस करेगा। सो ये एक तरह से रिस्क था, क्योंकि कोई आइडिया नहीं होता मैं बाहर से कि अंदर जो क्लाउड है उसमें कितना तेज स्ट्रॉम है, कितनी तेज हवा चल रही होगी, कैसा होगा अंदर से। लेकिन उसको लगा कि आई विल टेक द रिस्क, आई विल फ्लाई माई एयरक्राफ्ट थ्रू दिस स्ट्रॉम, ओके। Inside the clouds everything was suddenly black। so उसे डिसाइड किया कि मैं इस क्लाउड में से होके ही जाऊंगा, इस क्लाउड में से ही मैं अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करूंगा। सो उसने अपना एयरक्राफ्ट उस क्लाउड के अंदर ले लिया, लेकिन जैसे ही वो क्लाउड के अंदर पहुंचा उसने क्या देखा, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अंदर से पूरा तरफ से अंधेरा था, बिल्कुल ब्लैक था, सब कुछ उसे हर तरफ से ब्लैक दिख रहा था क्लाउड के अंदर, ओके।
It was impossible to see anything outside the aeroplane. So there was such darkness was there that it was just impossible for him to see anything outside the aeroplane. तो बहुत ज़्यादा darkness थी, बिल्कुल black कलर का वो cloud था, तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था. उस एयरक्राफ्ट के बाहर कहीं से कोई लाइट रोशनी कुछ भी नहीं थी. Just a complete darkness was there. The old aeroplane jumped and twisted in the air. अब वो एक stormy cloud के अंदर था, तो वहाँ बहुत तेज strong wind भी थी. सो बिकॉज ऑफ द विंड जो एरोप्लेन था उसका थोड़ा बैलेंस भी जो था वो मूव हो रहा था. ही वॉज नॉट एबल टू मेंटेन द बैलेंस. दैट्स वाई द एरोप्लेन जम्प्ड एंड इट ट्विस्टेड. व्हाट इज ट्विस्टेड? ट्विस्टेड मीन्स समथिंग दैट इज आउट ऑफ शेप. ओके, और वी कैन से इट मूव्ड और इट टर्न अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड. ओके, सो नाउ व्हेन द ओल्ड Dakota aircraft was in between the stormy cloud, so it turned, it twisted, it moved because of the strong winds. Okay, I looked at the compass. So अब उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि मैं कहाँ आ गया, क्योंकि इतना अंधेरा था, इतना डार्कनेस थी सब जगह कि ये इवन डायरेक्शन तक आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था कि मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ. तो डायरेक्शन देखने के लिए व्हाट डिड ही डू? ही लुक्ड एट द कंपास जस्ट टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन दैट वेयर ही वॉज गोइंग. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. So जैसे इसने अपना compass निकाला to identify the direction, he was very shocked and he was not able to believe his eyes. Why? The compass was turning round and round and round. जो compass की needles थी वो क्या हो रही थी, जो direction show करती हैं वो लगातार round and round move होती जा रही थी. क्यों? क्योंकि ये जो aircraft था ये अब कहाँ था, ये एक बहुत तेज strong storm के अंदर था. So because of the storm, because of the strong wind, जो कंपास था that was not working properly, और जो उसकी needles थी that were moving round and round and round, it was dead. So कंपास जो था that was dead, that was not working at all. Okay, so he was not able to identify the directions. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. So उसको realize हो गया था कि जो कंपास है that is not working, that has dead already. So उसको लग गया था कि कंपास will not work. अब इसको लगा कि मेरे पास जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है मैं उनसे कुछ ट्राई करता हूँ जिससे मुझे कुछ हेल्प मिल जाए, मैं किसी को इन्फॉर्म कर सकूँ कि मेरा एयरक्राफ्ट जो है इस तरह से स्टॉर्म में फंस चुका है, मैं कहीं से कुछ हेल्प मंगा सकूँ. सो ही ट्राइड फॉर द अदर इंस्ट्रूमेंट, बट व्हाट डिड ही फाइंड आउट? ही फाइंड out that all the instruments were dead too. तो उसको लगा कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सभी इंस्ट्रूमेंट डेड हो गए थे, एक भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे काम नहीं कर रहा था. I tried the radio. So finally it was the last option for him. Finally he tried the radio. Finally he tried to make the connection from the control tower. तो उसको लगा कि मैं किसी भी कंट्रोल टावर से कनेक्शन बना लूँ, मैं इन्फॉर्म कर दूँ that my aircraft is now stuck in this storm. So finally he tried for the radio. Okay, so students, what will happen now? Will he be able to make the connection through the radio, or the radio will die also? We will get to know in the next video. So see you in the next video. Thank you.